تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ سامعین اکرام، جو ہماری نوجوان پیڑھی ہے جو کم علم رکھتی ہے، ان کو یہ لوگ بڑے پیار سے برگلاتے ہیں، میلاد منانا، تیجا منانا، 40واں منانا، فاتحہ کرنا، نظر و نیاز کرنا اور عرس منانا، اس پر یہ لوگ دلیل پہ دلیل مانگ کر کے، پریشان کر کے اور بھولے بھالے لوگوں کو بہکا دیتے ہیں۔ اب بھولا بھالا جو بیچارہ کم پڑھا لکھا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں یہ سب چیز غلط ہے، لیکن جب وہی کام یہ کرتے ہیں کہ سیرت نبی کے جلسے، درس بخاری، ختم بخاری، جشن ابن تیمیہ، اب یہ دیکھیے یہ کانفرنس صحابہ، یعنی صحابہ کی عظمت کے تعلق سے انہوں نے ایک کانفرنس رکھی ہے جس کا ایک پوسٹر شائع کیا۔ اب ان جاہلوں سے پوچھو کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے، کس صحابی نے کیا، کس تابعی نے کیا، کس تبع تابعی نے کیا، دن منعقد کر کے تاریخ اور پوسٹر شائع کر کے اپنے بڑے بڑے جاہل علماؤں کا نام اس میں ڈال کے لوگوں کو بلانا، تو یہ ان کے لیے بدعت نہیں ہے، یہ ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے جاہل ہیں، ان کے عالموں کو بھی پتا ہے کہ جو عمل مستحب ہے نا اس کو کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور جو دلیل مانگتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے مستحب عمل ہے کانفرنس کرنا، چاہے وہ اولیاء پہ کریں، صحابہ پہ کریں، تابعی پہ کریں، تبع تابعی پہ کریں، لیکن وہی کام اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے اوپر بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، اور یہاں تک کہ شرک اور مشرک کے بھی فتوے لگا دیتے ہیں۔ لیکن جب وہی کام یہ کرتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس سوال کے جواب نہیں ہے، ان کے پاس کیا صرف لب بازی، صرف کیا ہے عوام کو دھوکہ دینا۔ تو یہ پوسٹر آپ کے سامنے ہے، اس کے اندر ان کے نمبر ہیں، ان کی اچھے طریقے سے خاطرداری کر لیجئے اور اس ریکارڈنگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ لوگ کوئی کام ایجاد کریں تو وہ بدعت نہیں ہوتا، لیکن سنی، حنفی، بریلوی کوئی کام کرے اور جائز کام کرے، مستحب عمل کرے تو وہ ان کے لیے بدعت ہو جاتا ہے۔ تو آپ لوگ سماعت فرمائیں اس کی۔ ہلو، جی بھائی جان، جمشید علی بات کر رہا ہوں۔ ہاں سر، کیا؟ یہ جو کانفرنس ہونے والی ہے جو جی، پوسٹر شائع ہوا ہے، ہاں ہاں سر، عظمت صحابہ کانفرنس، ہاں جی سر، عظمت صحابہ کانفرنس یہ کب ہونے والی ہے؟ 19 تاریخ کو ہونی ہے سر۔ اور کہاں تھوڑا پہ؟ یہاں شور کیا کہا سر جی؟ کہاں پہ ہونے والی ہے؟ یہ چکمسود استھت چکمسود محمد پور کے بارڈر پر ہوگا، اور یہ چکمسود میں ہوگا۔ اچھا، تو یہ مسلک اہل حدیث والے کروا رہے ہیں نا؟ ہلو، کیا سر؟ میں کہہ رہا ہوں یہ جمعیت الاہل حدیث کی طرف سے ہو رہا ہے نا؟ جی، اچھا اچھا، تو یہ صحابہ، عظمت صحابہ کانفرنس کرنا کہاں سے ثابت ہے حضرت؟ یہ سر وہ قرآن حدیث سے ذرا حوالہ دے دیجئے۔ جی جی قرآن حدیث سے ہے۔ میرے نبی نے کہاں فرمایا کہ میرے صحابہ کی عظمت میں کانفرنس کرو؟ سر وہ جو ہے کہ جب ان کو نہیں، میلاد منانا بدعت ہے تمہارے نزدیک، تو یہ کانفرنس صحابہ کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ سر یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے سر۔ ثابت کرو، ثابت کرو۔ کس تابعی نے منائے، کس تبع تابعی نے صحابہ کانفرنس تاریخ متعین کر کے منائے؟ ذرا حوالہ دے دو۔ میں تاریخ متعین کر کے نہیں منایا گیا سر، تو یہ لیکن بدعت کیسے ایجاد کیے تم؟ ان کے عظمت کو بیان کیا جانا ضروری تھا۔ تو یہ بدعت کیوں ایجاد کیے بھائی؟ میلاد منانا تمہارے یہاں بدعت ہے، کوئی میلاد منا لیتا ہے تو تم اس میں بدعت اور بدعت کے فتوے لگاتے ہو۔ جی، یہ صحابہ، عظمت صحابہ کانفرنس کرنا، یہ اہل حدیثوں نے کہاں سے نکالا؟ قرآن حدیث میں کہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے نام پر دن متعین کر کے کانفرنس کرنا؟ سر یہ مطلب نہیں، حوالہ چاہیے۔ ٹھیک تم ہے، کرو تو رسگلہ اور دوسرا کرے تو کاٹا، ہے نا؟ تم ہاں لوگ بدعت نہیں بدعت ایجاد کرو تو تمہارے لیے رسگلہ گبا گب کھا لو۔ دوسرا اگر میلاد منا لے تو اس کے اوپر بدعت کے فتوے لگا دو۔ یہ اہل حدیث نے کہاں سے سیکھا ہے یہ اہل حدیث نے سیکھا نہیں ہاں بولو۔ وہ سیکھا ابھی تو آپ سے فون پہ بات ہو رہی ہے، سنیے، ابھی تو آپ سے فون پہ بات ہو رہی ہے، ابھی تو ہماری پوری ٹیم آپ کے کانفرنس میں گھسے گی۔ جب آپ کانفرنس کرو گے نا وہاں گھسے گی،
और आपसे हवाले मांगेगी पब्लिक के बीच में। ठीक है सर। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम नूर आलम है। नूर आलम साहब, चलो अपने इमाम से बात कराओ जिसने ये महफिल मुनक्कद की है ना, उससे जरा बात कराओ हमारी, कहाँ से उसने ये निकाला करने का तरीका। वो तो इस समय है नहीं, इसमें हम तहसील में आए हैं सर। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गए। या मर के मिट्टी में मिल गए? क्या सर? कहाँ है आपके जिन्होंने ये महफिल मुनक्कद करने की आपको परमिशन दी है? आपने उनसे हवाला मांगा? अगर कोई मिलाद मनाता है तो आप उनसे हवाले मांगते हो, तो आपको इसने कहा कि कॉन्फ्रेंस सहाबाए कॉन्फ्रेंस करो और उस पर पोस्टर शाया करो, तो उससे आपने हवाला मांगा कुरान हदीस से, या उसी की अंधी तकलीद कर रहे हो? हाँ जी, आप आइएगा, हम आपको हवाला देंगे। दो हवाला दो ना, अभी क्या मौत आ रही है तुमको हवाला देने में? नहीं आ रही है, लेकिन तो मौत क्यों आ रही है तुम्हें? हवाला दो। मौत नहीं आ रही, इस समय थोड़ा सा हम बिजी हैं सर। इस समय तुम्हारे हलक के अंदर बरेली का आवाज ठूस दिया, इसलिए तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। हम आपको सारे सबूत के साथ हवाला देंगे। कब हवाला दोगे? कब दोगे कि सहाबाए कॉन्फ्रेंस करना सुन्नत रसूल है, सुन्नत सहाबा है? किस सहाबी ने दूसरे सहाबी की कॉन्फ्रेंस की? हजरत अबू बकर की हजरत उमर ने की हो, या हजरत उमर की हजरत अली ने की हो, उस्मान गनी ने की हो, कि सहाबा कॉन्फ्रेंस करो, दिन मुनक्कद करो, तारीख तय करो और लोगों को दावत दो, बुलाओ? कहाँ से साबित है ये? बिदती हो तुम लोग, नई नई बिदत इजाद करो तो कुछ नहीं, और बरेलवी मिलाद मना ले, उर्स मना ले, तीजा मना ले, तो उससे हवाले मांगते हो। क्यों अहले खबीसो, नाअहल लोगो, क्या हुआ? सांप सूंघ गया? हेलो, हाँ जी जनाब। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। जी मैं पूछा था, ये सहाबा की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, हाँ ये आपने पोस्टर शाया किया है, हाँ। तो ये सहाबा कॉन्फ्रेंस करना कुरान हदीस में कहाँ से साबित है हजरत? अरे कुरान हदीस साबित जो है, आपको हवाला चाहिए, आपको कब देंगे हवाला? जब आइए आप। कब? नहीं, अभी हवाला दीजिए ना भाई। कोई मिलाद मनाता है तो आप उसको फोन पे फोन करके परेशान करते हैं, मिलाद मनाना कहाँ से साबित है, तीजा करना कहाँ से साबित है, 40वां करना कहाँ से साबित है, फातिहा करना कहाँ से साबित है? तो तुम्हारे अब्बा ने ये निकाला है सहाबा कॉन्फ्रेंस करना। कहाँ पे आप मिलेंगे? अरे हम तो जहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, हम तो यूट्यूब पर मिलेंगे, ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी आपके। नहीं तो हम अभी तहसील में हैं, अभी मस्जिद में है? तहसील में तहसील में क्या कर रहे हो? किसकी जमीन हड़प रहे हो? किसकी मस्जिद पे कब्जा कर रहे हो? अरे तुम लोगों का काम ही यही है ना, सुन्नियों की मस्जिद पे कब्जा करना, उनकी जमीनों पे कब्जा करना, मदरसों पे कब्जा करना है, उनके ऊपर बिदत के फतवे लगाना कि मिलाद कर दिया तो बिदत ही हो गया। और तुम्हारे अब्बा ये इजाद करके बैठे हैं सहाबा कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ से निकाले हो तुम? आप लोगों की गलत फहमी है। गलत फहमी तुम्हारी है। अच्छा ये बताओ, मिलाद मनाना क्या है? हम क्या बोल रहे हैं? मिलाद मनाना क्या है ये बता मुझको भी, बकबक मत कर। मिलाद मनाना क्या है? नबी का मिलाद मनाना क्या है? क्या नबी का मिलाद मनाना क्या है? तब नबी का मिलाद कब मनाया जाता है? तो सहाबा कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो ये बताओ मिलाद तू कब? मुझे बताना, सहाबा की कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? इसको समझा। कॉन्फ्रेंस से सहाबा किसने किया था इजाद, कब हुई थी? क्या था? मैं कह रहा हूँ सहाबा कॉन्फ्रेंस, सहाबा ये किसने इजाद किया, कब हुई थी ये किसी ने याद नहीं किया सर। तो तूने क्यों बिदत निकाला ये? अब मिलाद किसने किया था? क्या नहीं है मिलाद? नहीं है शरीयत में कोई, शरीयत में नया काम, शरीयत में नया काम करना क्या है? मेरे नबी ने कहा कि जिसके मैं हूँ, मेरे सहाबा है, वही मेरी सुन्नत है। कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोला है कि सहाबा की कॉन्फ्रेंस करो। तो जब उनके मेरे नबी ने अपना मिलाद खुद मनाया, रोजा रखे, तो तुम्हारे लिए बिदत हो जाती है। सुनिए, जब हम उनके उनके बारे में जानेंगे नहीं, किसके बारे में? सहाबा के बारे में। तो मिलाद में हुजूर के बारे में जानेंगे नहीं तो हुजूर की उस पर कैसे चलेंगे, अमल कैसे करेंगे? जो है कि आप बड़े बड़े आलिमों से, कौन से बड़े बड़े आलिम लेके आते रहे लाइन पे? एक भी बड़े आलिम को लेके आ लाइन पे। हाँ तो आ जाइए, आप आ जाइए हमारे यहाँ, आप आ जाइए। नंबर दे, नंबर
आप आ जाइए, हम मिल अरे लेंगे। नंबर दे दो भाई, अपने आ आलिम जाइए, का नंबर दे आप दो। यूट्यूब से जब निकाल सकते हैं तो आप जो है कि आपके नंबर भी पोस्टर ढूंढ से सकते निकाला, हैं। ये पोस्टर आया मेरे पास हाँ, आपसे। तो पोस्टर से निकाला है तो आप उसको भी ढूंढ लीजिए, नहीं, जिसका आलिम का नंबर नंबर दे दो ना। तुम्हारे कौन से हाँ, तो लंगड़े जिसका लूले नंबर बहरे है उसके अंधे नंबर आलिम से है? यूट्यूब पे सर्च तुम्हारे कीजिएगा, मिल जाएगा। लंगड़े लूले अंधे बहरे आलिम जिनको मिलाद नहीं दिखाई देता, ना सुनाई देता है, हाँ, तो उन ठीक है, लंगड़े आप अंधे आइए को तो पहले बाद में कॉन्फ्रेंस बात साहबा करेंगे दिखाई आपसे। दे गया। हेलो, हाँ जी भैया, कौन ये साहब? कह रहे थे आप जानना चाहते थे ना, मतलब साहबा कॉन्फ्रेंस के बारे में। हाँ, साहबा हाँ कॉन्फ्रेंस कहाँ से साबित है? हाँ, साहबा का कॉन्फ्रेंस कहाँ से साबित है? हाँ, कुरान से साबित है भैया। हदीस पेश करो। कहाँ लिखा है कुरान में? अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी के साहबा के। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि उस तरीके से ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए हैं। अच्छा ठीक, इसमें कहाँ लिखा ठीक, है अल्लाह ने कि मेरे साहबा की कॉन्फ्रेंस करो? अल्लाह ने कहा कि सहाबा की हाँ, तरह ईमान लाओ। आयत तो पढ़ो जब जरा, हम सहाबा के बारे में जानेंगे आयत ही पढ़ो। नहीं तो उनके बारे में ईमान मतलब कैसे लाएंगे, मतलब कैसे जानकारी होगी? अच्छा उनका ईमान मतलब, कितना मजबूत था। अच्छा किसी को जानने के लिए हमें कॉन्फ्रेंस कराना पड़ेगा? क्यों नहीं, उनके उनके सीरत को पढ़ना पड़ेगा, उनकी सीरत को सुनना तो पड़ेगा, उनकी अल्लाह सीरत के रसूल को देखना जानने, होगा। अल्लाह के रसूल को जानने के लिए जब ताबई ने कॉन्फ्रेंस किया तो फिर आप उसको बिदअत क्यों कहते हैं? कहाँ नबी की सीरत को कोई मेरे बिदअत नबी, नहीं कहता। नहीं नहीं, मेरे नबी का मिलाद मनाया साहबा ताबई ने, तबे ताबई ने, तो आप उसको फिर बिदअत कैसे कहते हैं? अगर नबी की सीरत को जानने के लिए साहबा ने मिलाद की महफिल मुनक्कद की ताबई ने, तबे ताबई ने, इमाम तिरमिजी ने, तो फिर आप उसको बिदअत कैसे कहते हैं? तो बिदअत हम्म, सीरत सीरत सुनने के लिए बिदअत नहीं कहा जाता। जो ये जुलूस लेकर के आप चलते हैं, ये जुलूस की ओ शक्ल में हो, इस तो तरीके साहबा से की कौन, सुनो, साहबा की यहाँ जुलूस निकाला नहीं सीरत जा को, रहा है। हाँ, साहबा की सीरत को जानने के लिए बिदअत नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये जो टंडा तंबू लगा करके लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है हम्म। दिन मुनक्कद करके, ये बिदअत होगा। तो जब अहले तो का क्या होता है? जब आप वो काम करो, जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ, पहले जुलूस जवाब की सुना शक्ल करो, में उसके लोगों को बाद तब इकट्ठा कर रहे हो, जुलूस की बीच शक्ल में में, टपका ना करो, पहले सुनो, जवाब टपर कल टपर, टीचर ओ को था, टपर मैं टपर कागज टपर तैयार टपर, करा सुनो रहा था। सुनो सुनो, हाँ। जुलूस की शक्ल में लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, लोगों को इकट्ठा करके कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, और वही जुलूस की शक्ल में हम लोगों को इकट्ठा करके मिलाद मनाए, तो वो बिदअत हो जाता है। और ये बिदअत क्यों नहीं होता? ये बिदअत नहीं है, ये कैसे सीरत सुनने कैसे के लिए कैसे? बुलाया जाता। तो वो क्या सुनने, वो क्या होता है? वो नबी की सीरत सुनने के लिए नहीं बुलाया जाता, उसमें क्या होता है? क्या गड़बड़ है उसमें? आपके यहाँ तकरीर में हाँ, किताब होता है, क्या होता है? जिसमें जिसमें जिस तरह जिस हाँ, जिस हाँ, समय आप जिस जुलूस जिस लेके निकलते हैं उसमें किताब होता है? नहीं होता, उसमें कोई क्या आलिम होता है? किताब करता है? उसमें नात शरीफ सिर्फ होती है, नाते पढ़ी खिताब जाती होती हैं। है। तो नाते सुनिए, पढ़ना सिर्फ बिदअत नाते पढ़ी है? जाती हैं। नाते पढ़ना बिदअत है? नाते पढ़ना बिदअत नहीं है, ये भी कहावत से साबित है। अच्छा, तो लेकिन फिर उसमें जो है कि हाँ सिर्फ हाँ, नाते ही पढ़ी जाती है कि और मुनाजात भी किया तो जाता उससे है? क्या मतलब? मुनाजात करते हो आप जो साहबा की महफिल मुनक्कद कर रहे हो, उसमें क्या तमाम साहबा की सीरत बयान करोगे? मुनाजात करना कहाँ से साबित है? अच्छा, आप मुनाजातें भी किस करते साहबा हो? की सीरत बयान करोगे? चलो एक साहबा का नाम बताओ। साहबा का नाम? हाँ, किस साहबा की सीरत बयान करोगे? अबू बकर, उस्मान। हजरत अबू बकर को, हाँ। हजरत अबू बकर का खिताब कौन से सन में, कौन सी तारीख को, कौन से महीने में दिया था अल्लाह के रसूल ने? तो कौन से सन, कौन सी तारीख में दिया था? अबे जब तुमको खुद नहीं पता तो तुम क्या सीरत बयान करोगे? तो सीरत बयान हम करेंगे, हम आलिम हैं। अच्छा, अबू बकर सिद्दीक ने कितने निकाह किए? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर के पीछे कितनी नमाजें पढ़ी और कितने दिन हुजूर के पीछे रहे? तो ये जब सुनना होगा ना तो आप इस साल पे चले आइएगा भैया। अबे जाहिल की जमात, तो जब तुम्हें खुद नहीं पता तुम दूसरों को क्या सिखाओगे बे? सुनने चले आना, अच्छा ये बताओ, अबू बकर सिद्दीक का लक़ब कब दिया? फोन काट के भागने से नहीं होगा, जवाब देना होगा। अबे शांत रहो, हमें पता है तुम्हें कितना जानकारी है। तुम लोग जाहिल हो ना, तुम लोग जाहिलों ने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। कब्र पूजा करने वाले आगे औकात पर अपनी, आगे औकात पर। तो यही औकात है तुम्हारी। अच्छा, कब्र पर जाना कैसा? क्या कब्र पे जाके पूजा पाठ नहीं करते? पक्की कब्र बनाना कैसा? क्या पक्की कब्र नहीं, पक्की कब्र तो बनाना गलत है ही। तो ये अबू बकर सिद्दीक हसन भोपाली की कब्र भोपाल में कब जाके तोड़ेगा तू? कौन सिद्दीक हसन भोपाली? तेरा बाप। हाँ, तेरा बाप, तेरा आलिम। अबे वो तेरा बाप होगा। अच्छा एक बार बोल दे सिद्दीक हसन भोपाली मेरा आलिम नहीं है। अबे हम उसको जानते ही नहीं। अच्छा, शाह इस्माइल लहलवी?
तू इस्लाम की बात इब्ने कर रहा है तैमिया ना? को जानता है? पहले बात इब्ने तू तैमिया दीन को की बात जानता कर, है? दीन की बात कर। इब्ने तैमिया ऐसा को नहीं है, जानता है कि पहले नहीं? बात सुन, कब्र पहले पे तू बात आया सुन। ना, कब्र पे अबे तू आया। जाहिल, पहले बात सुन, अबे मुझे पूजा पता तो है तू कर रहा है, इब्न मुकल्लिद है, शमिया की। मुकल्लिद। मुकल्लिद का मतलब ये मुकल्लिद जाहिल है, किसको कहते हैं? जाहिल। मुकल्लिद पहले किसको बात कहते सुन। हैं? हाँ, मुकल्लिद किसको कहते हैं? मुकल्लिद तू जैसे मुकल्लिद की तारीफ अंधभक्त क्या है? है, मुकल्लिद की तारीफ क्या है? अंधभक्त है तू, अंधभक्त तो तू है। तेरे आलिम ने मुकल्लिद का कहा मतलब कि यही होता है, अंधभक्त। सीरत गड़े में कॉन्फ्रेंस जाके करो, कूद साहबा पड़ो, की तू करने गड़े लग में गया। जाके कूद पड़ो, गड़े में जाके कूद पड़ो। कैसे कैसे? इसी को बताओ कहते हैं, बताओ बताओ। इसी को कहते हैं। तारीफ करो मुकल्लिद की तारीफ। अबे तारीफ क्या, तुम्हें कुछ इमाम समझ बुखारी नहीं गड्ढे में आता? कूदे थे जाके। तुम्हें किस्सा कहानी सुनने के लिए इमाम फुर्सत बुखारी मिले तब ना इमाम समझ में बुखारी आएगा। इमाम शाफी के मुकल्लिद थे, वो हाँ? गड्ढे में कूदे थे जाके। अबे तुम लोग कूद रहे और हो, वो जाहिल लोग के बच्चे। कोई इमाम मुकल्लिद नहीं था, बुखारी चूतिए। इमाम पहले बात बुखारी सुन। मुकल्लिद नहीं थे? अबे पहले बात सुन। इमाम बुखारी मुकल्लिद थे कि नहीं, ये बता। मुकल्लिद मुकल्लिद नहीं थे वो इमाम लोग, मुस्लिम मुकल्लिद थे समझा? या नहीं थे? वो एक दूसरे की। हाँ। मुकल्लिद का मतलब क्या होता है, तू ही बता। अच्छा पहले बता। मुकल्लिद का माना होता है किसी गैर अंबिया की बात को उससे बिना दलील तलब किए उस पे एक्सेप्ट कर लेना, हाँ। उसको मान लेना हाँ तो तुम लोग करते मसाइल तो में। तू नहीं करते करता, तो- तू नहीं करता, पहले बात सुन, तू नहीं करता। पहले बात सुन, बात अच्छा ये बता, नमाज में कितने वाजिबात और कितनी सुन्नतें हैं? अबे कुरान पहले हदीस से बात जवाब सुन देना, तू। भागना नहीं। फंसा मत तू बेटा, फंसा मत। मतलब तुझे पता है तू फंस जाएगा। कुरान में कितनी वाजिबात और कितनी सुन्नत है, कुरान हदीस से जवाब दे। तू जिससे बात कर रहा है तू वो मुकल्लिद नहीं है ना? अभी मुकल्लिद साबित करूंगा तुझे। अबे कुरान मुकल्लिद तू हदीस है, में अंधभक्त। कुरान हदीस में कितनी सुन्नतें नमाज तू में, एक कितने काम कर, वाजिब है? पहले बात सुन, तू एक काम कर। नहीं मालूम अबे पहले बात सुन, तो तुझे मुकल्लिद बन गया इतना फिर ही- इतना ही इल्म है तो ना, फिर मुकल्लिद बन गया। आ जा भाई, तू आलिम लोग से बात तेरे कर ले। जिस आलिम के अंदर सलाहियत हो आलिम लोग उससे से मेरी बात कर ले करा तू। दे। बात हाँ, करा, जैसे तेरे आलिम बात करा। कोई पूछ रहा है कि दर्द कैसे जाएगा, बोल रहा है दाता साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात है। हाँ तो तू कर ले ना ये क्या उसको, तरीका है? उसको कर ले। क्या उसको तू जो कर। तेरा जर्जीज ये सब- बलात्कार करके स्टेज पे ये बैठ सब- सकता है, ये तेरा सब- जर्जीज बलात्कार करके स्टेज पे बैठ सकता अच्छा, है, मेरा जर्जी तेरा जर्जीज बलात्कार करके स्टेज पे बैठ सकता बेटा है। साबित नहीं तेरा हुआ है। बलात्कारी क्यों? तेरे बलात्कारी ने 1 करोड़ रुपए दिया ना उस लड़की साबित को। नहीं हुआ है। 1 करोड़ रुपए दिया, अच्छा, किस लिए देख, दिया? तुम लोगों में यही कमी रहती है। तेरे हम दीन जर्जीज इस्लाम ने बात करें, तू तेरे सच्ची जर्जीज ने परस्ती बात 1 कर करोड़ रहा है। रुपए क्यों दिया? पहले बात सुन, चल तू कॉन्फ्रेंस साहबा करना साबित कर। अबे पहले बात सुन, तू देख हम मुकल्लिद? दीन की बात कर रहे हैं, तू बोल रहा है जर्जी। और मुकल्लिद तो तूने भी तो मेरे आलिम पे बात हाँ? की। कौन आलिम की? तू भी तो आलिम पर आया ना। पहले तू आया कि दादा साहब जाके की उनका घोड़ी कब्र फलाना तोड़। ढमकाना। हमें उनका कबर ही नहीं तो पता तूने है। कब्र पुजारी कहाँ क्यों है? बोला? ऐसे ही बोला। कैसे तू बोल बोला? रहा है मतलब उल्टा तेरे सीधा बोल बाप रहा है। दादा जो थे बरेलवी वो सब कब्र पूछ के मरे हैं, सब मुशरिक मरे। तेरे बाप दादा जो बरेलवी मरे सब कब्र मैं- पूछ के मरे। तेरे बाप दादा मरे होंगे। नहीं, तेरे बाप दादा जिंदा है। तेरे दादा नगड़ दादा सगड़ दादा जो कब्र पूछ के मरे अबे हिंदुस्तान लगड़ दादा में, सगड़ दादा तेरे मुंह से। वो सब मुशरिक मरे। जाहिल। एक बार बोल दे, कब्र पूछने वाला मुशरिक बोल एक बार। अबे मैं क्यों बोलूं? तो फिर ये तेरे तुम लोग नगड़ जब- दादा सगड़ दादा तेरे दादा जो तुम लोग मरे जब कब्र ऐसे पूछ जाहिलों पूछ की के। तरह बात करते हैं ना, तो इसलिए चलो हमको भी आप इल्मी तुम्हारे बात साथ जाहिल ही करो, बनना पड़ता चलो है। इल्मी बात करो, साहबा कॉन्फ्रेंस साबित करो। अरे तुम इल्मी बात अपने पास रखो, इल्मी तुम बात करो, आ नहीं जाओ इल्मी बात 19 करने की तारीख को आ सलाहियत जाओ। कहाँ आ जाए? आ जाओ 19 तारीख आप को, एक काम इंतजार करो, करता है बे। आप एक काम करो, तहरीर शाया करो कि हमारे आलिमों से मुनाजरा करने के लिए तुम्हारे आलिम राजी हैं। अच्छा, कब अब ये करोगे? हम- जैसे पोस्टर शाया हम किया ना अभी आपने। अब हाँ पहले बात सुन, पहले बात सुन। हाँ, हाँ, हाँ। आजकल i+ टीवी खुला है, उसमें जाके आई प्लस तो मेरा आईडी ब्लॉक करके बैठे हैं, उनको तो मैंने बहुत मारा पकड़ के। रिकॉर्डिंग भेजू? देख रहे हैं हम लोग, नया नया रिकॉर्डिंग भेजू? वीडियो आ रहा है। अरे मेरा आईडी ब्लॉक करके बैठे हैं वो। ऑडियो भेजू मैं तेरे पास कि कैसे वो भागे, कैसे मैंने उनको चैलेंज किया। अरे पता है तुम लोग कैसे चले, तुम लोग आई प्लस के मुकल्लिद हो नाराबाजी क्या? करके जीत सुन सुन, आई प्लस के मुकल्लिद हो तुम? गाली नाराबाजी, गाली नाराबाजी। तुम तो किसी की तकलीफ नहीं करते हो। आई प्लस के मुकल्लिद हो? ना ना ना, मुकल्लिद अगर तो आई प्लस ठीक है, ये तुमको कैसे पता लगा? कुरान हदीस में आया था। साबित करने लगोगे ना, तो तुम भी अबू हनीफा के मुकल्लिद नहीं हो। अच्छा तुम मुझे बताओ ना, मुझे बताओ ना, डायरेक्ट नहीं बताए हैं, मुझे बताओ ना, मोहम्मद इमाम यूसुफ ने बताया है। मुझे बताओ ना। चलो रखो, कुरान हदीस में भागना नहीं, मेरे पास भागना नहीं, भाभी काम करने जाना है। भागना नहीं, भागना नहीं, भाभी।